ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੁਰੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 20 ਅੰਗ ਨੇ, ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤ, ਗਾਹਕ ਤੇ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਨਹੀਂ,
उदों तो ही वह व्यापार नहीं कर सकेगा। इस करके पहली गल तो यह है, मनुख सत संगत में बैठा है कि सत संगत का गाहक ये है। कबीर साहब ने तो बड़ा सोहना लिखा है, कबीरा राम पदार्थ पाए कह, कबीरा गांठ ना खोल। कहते हे कबीर, जे तेनू रब की कोई गल पता लग गई है, एवें गंढ खोल के ना बह जाए। क्यों? नहीं गाहक नहीं पारखू, इत्थे कोई गाहक नहीं है। जेड़े रब का नां दा तेनू पता लगे है, भावें ये बेशकीमती है, पर जदों ते कीमत नहीं पता, उहदे वास्ते पत्थर तो वध नहीं। हीरे कई बारी पत्थर ले समझ ले जाते हैं, और कई बारी पत्थरां नूं हीरे समझ लिया जाता है। भगत रविदास जी के इस पावन पुरब नूं आपां मना रहे हैं। इत्थों असीं ये वेखना भगत रविदास जी की बाणी सानूं कहंदी की है। उत्थों बदल जीवन तो उत्थों बदलना। लगातार भगत रविदास जी की प्रतिमा नूं कोई मत्था टेकदा रहेगा, प्रतिमा दे नाल जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा उन्हां दे शब्द नाल। यही लड़ाई उन्हां दी सदा पंडितां दे नाल रही है। पंडित का मतलब किसी जात का मतलब नहीं है, साध संगत याद रखना। पंडित का मतलब है जिहड़ा जानकारी नाल भरपूर है, अंदरों अंधा है। जिन्हों बाहरों तो जानकारी बड़ी है, शब्द कित्थों आए ने, वेद की कहंदे ने, हुण जिन्ना कुछ ज्ञान है उन्होंने सिर ते तर लिया। जो कुछ भी उसनूं पता है, जेड़ा कुछ भी पता है, वह हंकार है। एवं मैं आप जी के सामने एक होर बेनती करा, जिवें गुरबाणी दे विच शब्द ने हंकार दे उत्ते भी, गुरबाणी दे शब्द हैगे ने क्रोध दे उत्ते भी। हुण हंकार दे उत्ते जिन्ने शब्द ने, मनुख उहदी व्याख्या सिख ले और इहदा ही हंकार करी जाए। जिहड़ी चीज़ ने हंकार कढ़ना है, उस चीज़ का हंकार कर लिया। इनू कहंदे ने दवाई, इहदे वास्ते विष बन गई है, इहदे वास्ते दवाई ही जहर बन गई है। इस करके जानकारी तो बड़े लोगों नूं है परमात्मा बारे। महाराज कहते हैं, सुन वड्डा आख्या सब कोय, केवड़ वड्डा डिठा। परमात्मा बारे दुनिया जानती है, बड़ा वड्डा है, बड़ा वड्डा है। उन्होंने पूछे तू कभी वेख्या? वेख्या तो कभी नहीं, फिर वड्डा किवें? जिहड़ी चीज़ तू वेखी नहीं, वो वड्डी किवें हो सकती है? इस करके मनुख का बार बार परमात्मा ते विश्वास ही बनता, टुटता भी रहिंदा, बनता भी रहिंदा, टुटता भी रहिंदा। क्यों? जे ते परमात्मा कुछ दे देवे, परमात्मा अपना है। जे मंग पूरी ना करे, फिर परमात्मा बगाना है, फिर साडा कुछ नहीं लगदा। ये मनुख की सारी उम्र यही मानसिकता चलती रहती। मैं बेनती कर रहा सी, सब तो पहला जे भगत रविदास जी नूं जानना है, फिर उन्हां दी बाणी नूं जानना पएगा। बाणी विचों कहंदे की, उन्हां दे उपदेश की ने, उन्हां दे संदेश की ने। क्योंकि संदेश ही जिंदगी बदलणगे, उपदेश ही जिंदगी बदलणगे। मनुख परमात्मा की बाणी पढ़दा काहदे लई? अपनी जिंदगी बदलण लई। होर काहदे लई पढ़दा? जे लगातार बाणी पढ़द्या हंकार नहीं किया, माफ़ करना, बाणी पढ़ी सफल नहीं हुई। अंदरों जे क्रोध नहीं गया, बाणी पढ़ी सफल नहीं हुई। साध संगत याद रखना, एक पिंड के अंदर कुकर रहिंदे ने, कुत्ते रहिंदे ने। दूजे पिंड, एक पिंड के कुत्ते चले जाण, उन्होंने भी वड़न नहीं देंदे, उन्हां नाल भी ईर्खा करते हैं। वो पशु भी ईर्खा करते हैं। एक मनुख दूजे मनुख नाल ईर्खा करता है, फिर दोवां विच फर्क की है? पशु वर्गा ही जीवन है, पशु तो वखरा की। एक पशु भी ईर्खा करता है, एक मनुख भी ईर्खा करता है, फिर पशु के मनुख में फर्क की है? गुरु अर्जन साहब जी ने कहा, करतूत पशु की मानस जात। तेनू रब ने गलती कर दी, शरीर दी मुख वाला। तेनू रब नूं मनुखा वाला शरीर ही नहीं देना चाहिए सी। जे तू यही काम करने सी, फिर वो शरीर ठीक सी। नाले लड़ी जाता, झगड़ी जाता, हंकार भी करी जाता, मान भी करी जाता, हाथी विच काम भी है, काम भी करी जाना सी। वो जीवन दे देगा तेन। सतगुरु जी महाराज कहते हैं, जे भगत रविदास जी नूं जानना है, उन्हां दी बाणी तो जानिया जाएगा। और मैं फिर बेनती करा, उदों तई मनुख बाणी दे अर्थ नहीं पढ़ेगा जदों तई उन्होंने उसकी कीमत नहीं पता लगेगी। इस करके सिख जगत दे विच एक पिंड दे विच एक दो मनुख तो होएगा जिहड़ा गुरबाणी दे अर्थ जानदा है, सारे गुरबाणी तो बेअर्थ ने। क्यों? कीमत नहीं पता। जदों तई कीमत नहीं पता, उदों तई खोलेगा ही नहीं। बाणी ते कहंदी है, पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। लत महाराज कहते रतन अपार जाका कशु ना मोल, जिहदा मुल ही कोई नहीं।
पर मैं बेनती करा, मध्य प्रदेश के इलाके चों एक बारी एक बकरियां चगाउण वाले ने बकरियां भेडां चगाउण जांदा सी। राह दे विच एक पत्थर उहनूं लभ गया। पत्थर लिया के अपने बच्चों को दिता। पत्थर खेलते हैं, पत्थर सोहना बड़ा है, सारे बच्चे खेलते हैं पत्थर। लगातार ही वो पत्थर नाल खेलते रहे। एक दिन कोलों कोई जोहरी लंघ रहा सी, कहंदे ये की फड़ी फिरदे हो? कहंदे ये पत्थर है, बच्चे खेलते हैं। कहंदे ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है, ये तो हीरा है, मैं तुहानूं ये 10,000 रुपये दवा सकदा। कहंदे कमाल हो गई, फ्री का काम बन गया। 10,000 रुपये पत्थर विक रहे। हुण उन्हां वास्ते पत्थर है, उहदे वास्ते हीरा है। हीरिਆਂ की कदर जौहरी जानते हैं, सोने की कदर सुनियार जानता है, हरेक मनुख नहीं जानता। भगत रविदास के शब्दों की कीमत वह जानेगा जिहदे अंदर परमात्मा की प्यास है, हरेक कोई नहीं जान सकेगा। जिन्हों परमात्मा के नाल प्यार बन गया तां ही तो उन्होंने भगत कहा जाता है। क्यों? परमात्मा के नाल प्रेम है। जिहड़ा प्रेम विच भिज जाए उन्होंने ही भगत कहते हैं, जिहड़ा परमात्मा के प्रेम विच भिज गया। हुण वो जिहड़ा हीरा है 10,000 रुपये च उन्हें वेच दिता। वो जोहरी ने हीरा लिया, उन्होंने तराशिया, मुगल बादशाह नूं जाके दिता। उस हीरे का नाम बनया कोहिनूर। उन्होंने कहा जाता है कोहिनूर। चलिया कित्थों? एक भेडां वाले के घर चों। वही हीरा मुगल बादशाह कोल रहा, महाराजा रणजीत सिंह कोल रहा, अजकल इंग्लैंड दे विच है वो हीरा। तुरिया एक बकरी वाले के घरों, जिन्होंने हीरियां की कीमत पता हुंदी अज अमीर हुंदा। जे मनुख नूं भगत रविदास जी की बाणी की किते कीमत पता लग जाए अज अमीर बन जाएगा। एक गल याद रखना साध संगत, गुरबाणी ये कहती है राजा वो नहीं है जिहदे कोल लाखां रुपया ने, ये वो राजा नहीं, मत जानना। वो राजा नहीं हुंदा जिहदे कोल पैसे नहीं। जे पैसिਆਂ वाले राजे होंदे फिर तो सारी दुनिया ही राजा है ना। गुरबाणी कहती है राजा वो है जिहड़ा रज गया है। किसी ने सारे देश का गऊआं के चारे खा ले ने, सारे देश का पैसा खा लिया, रज अजे भी नहीं आया। किसी ने 2 रुपये से रज आ जाता। जेड़ा रज गया है राजा वही है। महाराज ते बाणी दे रज ना कोई जीविया, पहुँच ना चलिया कोई, रज के तो कोई भी नहीं दिंदा। इस करके याद रखना, वो मनुख गरीब नहीं है जिहदे कोल पैसा नहीं है। वो मनुख गरीब है जिहदे कोल रब दा नाम नहीं है। वो सब तो गरीब है। ना उसका किसी ने नाम लैना, ना परिवार ने नाम लैना, ना संसार ने नाम लैना। गरीब वो है जिहदे कोल रब दा नाम नहीं है, वो गरीब है। मत जानना कदे वो गरीब है जिहदे कोल पैसे की घाट है। जे पैसे करके लोग अमीर होंदे, अज भगत रविदास का बर्थडे नहीं सी मनाया जाना, उन्हां दा प्रकाश नहीं सी मनाया जाना, उन्हां दे टाइम जिहड़े अमीर होए सी उन्हां दा मनाया जाना सी। भगत रविदास जी उत्थे सिर्फ एक कुटिया दे विच रहिंदे ने। काम उन्हां दा जुत्तियां गंढना है, पर जुत्तियां दे गंढण दे नाल नाल लोकां दा मन परमात्मा नाल गंढ दिंदे ने। कल्ले जुत्तियां ही नहीं गंढदे, तिथै सीतो सीता महिमा माही, ताके रूप न कथने जाहे, ना वो मर है ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन। जिन्हां दे हिरदियां दे विच रब वसदा है उन्हां नूं कोई नहीं ठग सकदा। अपने मन नूं सी लैंदे ने, सीता सी लिया। तिथै सीतो सीता महिमा माहे, उन्हां हरी हरी कह के हर हर करदे हुंदे सी। हमेशा हर 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 करदियां अपने मन नूं परमात्मा दे रंग विच रंग लिया, सी लिया। जिहदे विच कहंदे ने बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे। हे परमात्मा, ये मेरी जीव आत्मा बड़े जन्मां तो तेरे तो विछड़ी हुई है, ये जन्म मिले है, ये तेरे लेखे ला देना है, और कुछ नहीं करना। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार दे विच यही कथा चली। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुछदे ने सिंघां नूं, सिखो एक गल दसो, भगत रविदास जी के टाइम राजा कौन सी? महाराज सिखां नूं पुछदे ने, किसी नूं नहीं पता। गुरु गोबिंद सिंह जी पूछे ये तो दसो उन्हां दे टाइम अमीर कौन सी? किसी नूं नहीं पता। कहते भगत रविदास तो याद है? कहते याद है। महाराज कहते इत्थों गल याद रखना, दुनिया दे विच याद वो रखे जाते हैं जिहड़े रब नूं याद करते हैं। जिन्ना रब नूं याद नहीं करता उन्हां दे परिवार वाले भी उन्होंने भुल जाते हैं। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्हां ने रब नूं पूजिया रब उन्हां दी पूजा करा दिंदा है। थां थां ते भगत रविदास की पूजा हो रही है। जिन्हां रब नूं पूजिया परमात्मा उन्हां दी पूजा करा दिंदा है। जिन्हां रब नूं छड्ड के माया नूं पूजिया
तीजी पीढ़ी फोटो ला के बाहर सुट दिंदी है। किसी घर दे विच पड़दादे की फोटो नहीं हुंदी, दादे की भी बड़ी मुश्किल हुंदी है। 50 ते 100 साल बाद रजिस्ट्रियां तो नाम बदल जाते हैं। जिमी पूछे आसमान, फरीदा खेवट गिन गए, जालन गोरा नाल उलामे जी। जाना कित्थे है? कहते कित्थे गए ने? वड्डियां वड्डियां जमीनां वाले कित्थे गए ने? जिन्हां ने सारी उम्र परमात्मा तो बेमुख हो के सिर्फ ते सिर्फ लोगों का खून नचोड़ के वड्डे वड्डे महल ते खड़े कर ले ने, कित्थे गए ने? कहते जाना कित्थे है? वो भगत फरीद साहब जी मुसलमान धर्म नाल संबंध रखते सन। गोर का मतलब हुंदा कबर। कहते जाना कित्थे सी? शरीर कबरां विच बहे ने, रूहां बार बार जन्म मरण के गेड़ विच पईयां होईयां ने, और कित्थे जाना? आउंदे ने जांदे ने, आउंदे ने जांदे ने। इस करके दुनिया के उत्ते सदा उन्होंने याद रखा जाता है जिन्हों ने रब नूं याद रखे है, जिन्ना परमात्मा नूं याद रखे है। जिन्हों ने परमात्मा नूं याद नहीं रखा उन्होंने कोई याद नहीं रखता, भावें कुछ ही बना के चले जा। पर याद रखना, कोई राजा नहीं पूजा जाता, औरंगजेब की पूजा नहीं है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं दिल्ली के चांदनी चौंक दे विच भावें उन्हां दा सीस लै गया, धर्म की रखिया करदिआं, दुनिया की रखिया करदिआं। याद रखना, औरंगजेब की मड़ी के उत्ते दीवा बालण वाला कोई नहीं है। जिथों जिथों गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस लंघिआ उत्थे उत्थे शीश गंज बने ने। जिथे जिथे भी जिथे भी लंघिआ गुरु तेग बहादुर साहब का सीस, अज सीस गंज बने ने। औरंगजेब नूं याद ही कोई नहीं करता, मड़ी के उत्ते दीवा बालण वाला कोई नहीं है। इस करके साध संगत दुनिया के उत्ते भगत रविदास जी बार बार हरी हरी जपिआ है। मैं ये गल कह दियाँ, मनुख मूर्ति की पूजा तो करता है, मूर्ति की पूजा एक मैथड है, एक विधि है। मूर्ति गुरु नहीं हो सकती, एक विधि है। जिमें 9 प्रकार की भगती मन्नी है, 9वां विचों एक ये भी विधि है भगती करन दी। पर एक याद रखना, एक सीढ़ी है। जिमें मनुख कोठे के उत्ते बह गया है ना, तो फिर सीढ़ी का कोई काम नहीं रहिंदा, सीढ़ी ला देनी चाहिए। इस करके भगत रविदास जी नूं कदी मंदिर में नहीं वड़न दिता गया, कदी नहीं वड़न दिता। तू शूद्र जाति चों जा थल्ले। पर याद रखना, भगत रविदास जी भावें जिन्होंने मंदिर दे विच ते नहीं वड़न दिता गया, पर वड्डे वड्डे जिहड़े लोग सन, वड्डे वड्डे विद्वान सन, उन्होंने चरणों में बहना शुरू हो गए। कित्थे? क्यों? बाणी कहती है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावै पढ़िया अनपढ़िया परम गत। जिहड़े प्राणी गोबिंद नूं ध्याउंदे ने, भावें उन्होंने वेद पढ़े ने, भावें नहीं पढ़े। साध संगत जिमें जिमें मनुख जाप शुरू करता है, हरी हरी करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, सतनाम करो, जेड़ा मर्जी जाप शुरू करो। जिमें जिमें मन एकाग्र होंदा जाएगा, मनुख के अंदर ही ज्ञान है, अंदर ही बेगमपुरा बन जाएगा। इन्हूं भगत रविदास जी ने कहा, बेगमपुरा शहर को नाम। मैं किहड़े शहर का वासी हाँ? मैं चाहांगा इस शब्द की व्याख्या आप जी दे नाल जरूर करा। बेगम फारसी का शब्द है। बे का मतलब होंदा है फारसी विच नहीं, गम का मतलब जिथे कोई भी दुख नहीं है, गम नहीं है। एवं बैराग नहीं है, जिथे राग का मतलब प्रेम, मोह, जिथे मोह नहीं उन्होंने कहते हैं बैराग। बेईमान, जिहदे कोल ईमान नहीं है, बे का मतलब नहीं। इस करके कहते ने बेगमपुरा शहर को नाम। मैं हुण उस शहर का वासी बन गया जिथे गम कोई नहीं है, ना तसवीस। तसवीस का मतलब होता है सोच विचार, डर नहीं है। और साध संगत मनुख नूं डर पता ही कहता है? रिजक का। भावें कोई छोटा है उन्होंने भी रिजक का डर है, भावें कोई वड्डा है उन्होंने भी रिजक का डर है। मनुख नूं दुनिया के प्रमुख डर ने, मैनूं रोटी मिली है, पता नहीं शामी मिलनी है कि नहीं मिलनी, पता नहीं मिलनी, ये डर है। मैनूं अज रोटी मिली है, पता नहीं कल मिलनी है कि नहीं मिलनी है, ये डर है मनुख नूं, रोटी का डर है। दूजा डर है मौत का। पर गुरु नानक साहब जी तो कहते हैं, मनुख तेनों डरन की लोड़ नहीं है। भगत रविदास जी कहते हैं, अपने अंदर ये तो डर तू कढ़ दे, तेनों कोई भी रोटी देने वाला नहीं है, रोटी तेनों परमात्मा ने देनी है। जिस दिन तू जन्मिया सी उस दिन याद कर। महाराज बाणी च कहते हैं, रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे है प्यारा दूत, हे मनुख
ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿੱਦਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਥਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਬਾਹ, ਪਾਛੇ ਦੇਤੇ ਜੰਤੂ ਪਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਚਾਪਲੂਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਵਰ ਗਈ, ਮਾਇਆ ਗਈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਰੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਵਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ। ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ? ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ मैं दाते को लवांगा, भखारियां तो नहीं लेना। कहते मैं एडा वड्डा राजा हाँ, मैनू भखारी कह रहे हैं। कहते राजा तू भी किसी के हाथ जोड़ के खलोना है, फिर जिहदे तो तू मंगदा है तेनू राजा बनाया हुण मैं उहदे कोल मंगांगा। इस सिद्धांत है भगत रविदास जी का। इस करके साध संगत जी वो कहते ने मनुख तू डर ना, सिर्फ परमात्मा का नाम जप। दिन रात घट्टो घट्ट 20-25 मिनट तो मनुख नूं सवेरे शाम जपना ही चाहिए। उन्हें होर कुछ नहीं जपिया, हर हर जपिया, हर हर। मैं वेख रहा सी निशान साहब के उत्ते लिख के लाया है, पता नहीं कोई जपदा है कि नहीं जपदा, वखरी गल है, लिख के उत्ते लाया है। हुण इहनूं जपदा कौन कौन है ये नहीं पता। जदों तई जपेगा नहीं अंदरों गरीबी निकलेगी नहीं, याद रखना। जदों तई जपेगा नहीं अंदरों विकार निकलणगे नहीं, हौमे जाएगी नहीं, परमात्मा नाल सांझ नहीं पाएगी। जदों तई परमात्मा नाल नहीं जुड़ेगा मनुख दे अंदरों डर नहीं जाएगा, मनुख दे अंदरों हौमे नहीं जाएगी। इस करके वो कहते हैं तू तो जप करके दा कर, परमात्मा का जप कर। वो परमात्मा का नाल है जिन्हें तेनू जीवन दिता है, आ जिन्हें अखां दित्तियां ने, आ शरीर दिता है। ये शरीर खरीदिया नहीं है, बनाया नहीं है, मिलिया है। पर इनू तो महाराज इत्थों तो ही कहते ने याद रखी मिलिया भी की है, उन्हें तेनू भेजे है, तेरे कर्मां के अनुसार तेनू इत्थे भेजे है। घल्ले आवै नानका सदे उठी का, तेनू ये शरीर दिते है। महाराज बाणी च कहते रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। हे मनुख क्यों दुनिया के पिछे लग के परमात्मा तो बेमुख हो गया, क्यों दुनिया के रसां दे विच बह के परमात्मा नूं विसार ही दिता है। एडा वड्डा परमात्मा है, ऊंचा अगम अपार प्रभ, कथन न जाए अकथ। उस परमात्मा नूं याद कर। साडे देश दे विच जदों भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, जिन्ने भी भगत होए ने, एक लहर चली जिन्हों कहा जाता है भगती लहर। उस तो पहला इस देश दे विच बड़ियां कुरीतियां सन, लोकां नूं वर्ण वंड के नां ते वंडिया गया और एक कहा गया जिहड़ा मनुख ब्राह्मण के घर जन्म ले लेगा वो ब्राह्मण हो गया, जिहड़ा वैश्य के घर जन्म ले लेगा वो वैश्य हो गया। जिवें किसी के घर जन्म वैश्य के घर जन्म ले लिया वो वैश्य हो गया, शूद्र के घर जन्म ले लिया शूद्र हो गया। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं नहीं, भगत रविदास जी कहते नहीं, भगत कबीर साहब कहते नहीं, मनुख जन्म करके शुद्र नहीं है, अपने कर्म करके शुद्र है। उन्हें गल मनुख जन्म करके पिछड़िया नहीं है, अपने कर्म करके पिछड़िया होया है। मनुख की अगर सोच माड़ी है, भावें किसी ने अज ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, किसी भी घर में जन्म है, किसी भी कौम में है, भावें हिंदू है भावें सिख है, जे कर्म माड़े ने उन्होंने गुरु नानक से एक्सेप्ट नहीं करते। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो कह दिता सी, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना, मैनू तू प्यारा नहीं है। और मैं तो ये उत्ते आप जी के सामने एक गल होर भी कह दें। आनंदपुर साहब की गल है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे सन, हवा चल रही सी मध्यम मध्यम जी। एक सिख ने किसी को पैसे ले ले, शाहूकार को, वो भी सिख सी, वो घर पैसा लैन लई गया, वो कहता जा मैं पैसे नहीं देने। गुरु गोबिंद सिंह ये सारी गल सुन रहे हैं, सारी गल महाराज के कन्नी पै रही है। वो पैसे लैन लई कहता मैं पैसे नहीं देने, कहता पैसे दे तेनू लेखा भुगतना पैना। कहता लेखा लेखा कोई ना पूछे ही जा हर बख्शंदा, एवें कह दिता गो। मैनू तो गुरु ने अमृत छका दिता, मैंने तो बख्श दिता है, मेरा किने लेखा पूछना है। उधरों गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्तों बोले न, उत्तों ही कहते मेरी गल सुन, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुरपीर हामा तां पर है जा मुरदार ना खाए। मैं तेरा कोई अमा नहीं करना, जा अपने घर, मेरा तो कुछ नहीं लगता। लोगों का धन वड वड के वटा तू दूजी पैड़ी बना रहे हैं, मेरा कुछ नहीं लगता, जा मेरा कुछ नहीं। याद रखना, जे बगाना हक मनुख मारदा है ना उहदा हामा किसी ने मुहम्मद साहब भरनगे, ना उहदा हामा श्री कृष्ण जी भरनगे, ना उहदा हामा गुरु नानक साहब भरनगे, किसी ने उहदी हामी नहीं भरनी। क्यों? चोर का हामा भरे ना को।
चोरी का हम चोर का हमा कौन भरदा। महाराज इस करके कहते ने मनुख अपने जन्म करके शुद्र नहीं है, अपने कर्मा करके शुद्र है। और याद रखना जिन्नियां ये जातां ने, खत्रियां दे विचों अरोड़े ने, सिखां दे विचों जट ने, ये सारे शुद्रां दे विचों ही आउंदे सन। मैं आप जी सामने भी बेनती कर, पंथ प्रकाश दे विच ये सारियां जातां ते गोतां दे नां भाई रतन सिंह भंगू ने लिखे ने। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो अमृत छकाया उदन कह दिता कोई उच्चा नीवा नहीं है, साडे वास्ते कोई उच्चा नीवा नहीं। पहाड़ी राजे कहन लगे असीं अमृत छकण नूं तैयार हाँ, छक लवांगे, पर आ जेड़े बाटे दे विचों आ जेड़े जट बूट छक रहे ने, जे इन्हां नूं छकाणा फिर असीं नहीं छकना। महाराज कहंदे सानूं तुहाडे अमृत छकण नाल कोई फर्क नहीं पैना, छकना छको अपने घर जाओ, सानूं तुहाडी लोड़ नहीं है। महाराज ने नहीं सी छकाया। कहंदे जे अमृत छकना है इक्को बाटा तैयार होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਛਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸੋਂ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਵਾਂ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। अष्टावकर का जिहड़ा शरीर सी उन्होंने 8 वाल पैंदे सन, रूप सरीश सी। वो बेचारा सभा दे विच गया, उन्होंने वेख के वड्डे वड्डे विद्वान बैठे ने हस पे। जदों हसे ने इधरों अष्टावकर भी हस पिया। सारे उन्होंने पुछदे ने असीं ते हस रहे हैं, तू क्यों हस रहे हैं? कहंदे मैं तुहाडी मूर्खता ते हस रहा। तुहानूं लोकी विद्वान कहंदे ने, तुसीं ते एक धेले दे विद्वान नहीं, तुसीं काहदे विद्वान हो? कहते तुहाडी निगाह हदे ते चमड़े ते टिकी हुई है, तुसी आत्मा ताईं की जाओगे, तुहानूं कुछ भी नहीं पता। तुसी लोकां नूं कहंदे ने ये चमार ने, ये नीवीं जात दे ने, मेरे हिसाब नाल तुसी सारे चम दे व्यापारी हो, और कोई नहीं हो, तुहाडे विच कोई ब्राह्मण नहीं है। तुहाडी निगाह चमड़े ते टिक गई है, तुसी काहदे वड्डे विद्वान हो? वो कहंदा इस करके राजा जनक नूं कहंदा अष्टावकर, कहंदे हे राजा तेरी सभा दे विच विद्वानां दी सभा नहीं है, ये सारे मूर्ख ने, ये पढ़े लिखे मूर्ख ने। महाराज कहते पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। ये पढ़े हुए मूर्ख ने, और कुछ नहीं है। ये पढ़े हुए मूर्ख ने, भाव गुरबाणी भी पढ़ी है, पढ़ के हजे तई अंदर यही भावना है मैं वड्डा हाँ ये छोटा है। और मैं आप जी के सामने एक गल होर कह दें, जिस दिन महात्मा बुद्ध नूं ज्ञान होया वड्डे छोटे की गल, क्योंकि गुरु का सिख तो वही है जिहड़ा गुरु की गल मनदा है। जिहड़ा गुरु की गल नहीं मनेगा वो कोई सिख नहीं है। गुरु की जायदाद का भगत रविदास का सिख वो है जिहड़ा रविदास जी की गल मनदा है तो हरी हरी जप रहा है, और कोई उन्हां दा सिख कोई उन्हां दा अनुयायी नहीं है। इस शंके दे विच कदी मत रहना। इस शंके को अपने मन चों कढ देना चाहिए है। उन्हां दा अनुयायी तो वही है जिहड़ा उन्हां दी बाणी नूं मन के